A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know very well, till chapter 3 that we have completed. So from today's class we are going to discuss the chapter 4, that is measurement of national income. So you know very well that you have to study two books in the class 12 economics. First one is macroeconomics and the second one is Indian economic development. So now we are discussing only the macro part, and after that we will discuss the Indian economic development also. Okay, so in the first chapter we have discussed the introduction. Okay, so introduction of the macroeconomics. What is macroeconomics? What are the subject matter of the macroeconomics and the importance of the macroeconomics? Difference between the macroeconomics and the microeconomics, and the how the macroeconomics is interdependent on the microeconomics, and how microeconomics is interdependent on the macroeconomics. Next we have discussed the topic, that is classical thoughts. Two schools of thought in which we have discussed the classical thoughts and the Keynesian thought. Okay, so in the first chapter we have discussed all these things. In the second chapter we have started with the circular flow of income. Okay, so in the circular flow of income we have discussed the different economic activities, production, consumption and the investment or the capital formation. After that we have discussed the model of the circular flow of income, in which product and then income and then expenditure. After that we have discussed the meaning of the stock and flow, what is stock and what is flow, money flow, real flow, leakage, injection, we have discussed in the second chapter. In the third chapter, the chapter is the national income and the related aggregates. So in this chapter we have discussed the different aggregates, that is what is GDP, what is GDP at MP, GDP at FC, NDP at MP, NDP at FC, NNP at FC, and so on, GNP at FC. We have discussed the who is the citizen of the country and the normal resident, domestic territory, domestic income and the national income. And we know when we talk about the domestic income, so domestic income is NDP at FC, net domestic product at factor cost. So when we have to convert net into GDP, what we have to do, when we have to convert D into N, what we have to do, and when we converted FC into MP, so what we have to do. So we have already discussed all these things in the previous videos as well as in the offline classes. Okay, so till here we have already discussed in the previous classes. So in today's class we are going to start the measurement of the national income. Okay, so let's get started. Okay, so in the measurement of national income we have to discuss the methods of the calculating the national income. Okay, so in which we have to we will discuss the three methods of the calculating the national income. First one is, that is product method. Okay, so calculation of national income. So there are three methods of the calculating the national income, three methods. First one is value added method. Value added method. Second one is income method. And the third is expenditure method. Okay, so there are three methods of the calculating the national income, that is value added method, income method and the expenditure
method. Okay, so we will discuss all these three one by one कि हम लोग सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सिंपली देखिए, मनी वैल्यू ऑफ द फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम. ठीक है, कोई भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी जो भी मनी वैल्यू है, मनी, क्योंकि कोई भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर इकॉनमी में, तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कि वो क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं. टू गो इन टू द मार्केट, वो मार्केट में जाने के लिए. जब वो मार्केट में जाएंगे तो उससे क्या होगा, कोई परचेज करेगा किसी की, कोई इसको सेल करेगा, तो जिसकी जो सेल कर रहा है उसकी क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट हो रही है. सो इट मीन्स दैट देयर इज अ इनकम फ्लो करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम का फ्लो हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ आउटपुट. जब हम लोग आउटपुट का फ्लो कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है. सो गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज बाय द पीपल थ्रू कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे परचेज हो रहा है, बाय द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कि नॉर्मली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करते हैं. एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज कर रहे हैं. जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम का जनरेशन हो रहा है. ठीक है, सो विच गिव्स राइज टू इनकम फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. So we have seen in the previous chapter that production gives rise to income, income gives rise to expenditure, and expenditure causes the production of goods and services. ठीक है, जब भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जैसे ही प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होगा तो इट विल इंक्रीज द राइज इन द इनकम. ठीक है, क्योंकि अब कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीजें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रोडक्शन होने का मतलब है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं. गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होंगे, बाय द डिफरेंट फैक्टर. सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, अब इनके रिटर्न में इनको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगा. ठीक है, लैंड पे हम रेंट लेंगे, देन वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट. ये क्या हो रही है, फैक्टर इनकम. इनकम जनरेट हो रही है. जब लोगों की इनकम जनरेट होगी then they will do the expenditure. वो क्या करेंगे, उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे. then increase in income, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है so it will lead to increase in expenditure. ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब है कि जब लोग कंजप्शन ज़्यादा करेंगे then it will lead to the प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि जब हम लोग कंजप्शन करेंगे, तो जब कंजप्शन करेंगे तो जो स्टॉक है, इन्वेंट्री, वो क्या होंगे, लैक होंगे, लैक ऑफ अमाउंट ऑफ, या तो इन्वेंट्री होंगे या स्टॉक होंगे. तो ये क्या फिर फोर्स करेंगे कि फिर से प्रोडक्शन हो. तो अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ठीक है, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कभी भी जो भी इनकम का जनरेशन है, ये जो प्रोसेस है, इनकम जो भी सर्कुलेट हो रही है इकॉनमी में, वो कभी भी किसी भी केस में स्टॉप नहीं होती. किसी भी सिचुएशन पे वो स्टॉप नहीं होती कि नहीं अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग का इनकम का कोई भी जनरेशन नहीं होगा. इसका मतलब यही है कि पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो फिर से भी प्रोडक्शन होगा. अब इसी को क्या है कि जैसे ये प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एट डिफरेंट स्टेजेस. प्रोडक्शन पे स्टेज पे, इनकम के स्टेज पे जब इनकम जनरेट हुई है और जब एक्सपेंडिचर हो रहा है. तो इसी के लिए यहाँ पे 3 मेथड्स हो गए हैं कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड. अब तीनों मेथड्स के डिफरेंट फॉर्मूला हैं, डिफरेंट थियरी है, उनके प्रिकॉशंस हैं कि जब भी हम लोग ये आइटम, कौन से आइटम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम, कौन से आइटम हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फैक्टर पेमेंट एंड दी ट्रांसफर पेमेंट. तो जहाँ पे करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो वो आइटम्स हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. जहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है वो आइटम इंक्लूड नहीं करते. फॉर एग्जांपल ट्रांसफर पेमेंट, जो ट्रांसफर पेमेंट होता है, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट में ये क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिलेटरल ट्रांसफर. इनको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं.
जिसमें वन साइडेड पेमेंट होता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जा रहा है, फिर आपका हो गया पेंशन्स हो गया है, फिर स्कॉलरशिप हो गया, ये सारे क्या हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट हो गया, ये सारे क्या आपके ट्रांसफर पे। तो ये सारे क्या है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी इसके लिए क्या होता है, ये सारे आइटम्स नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर का वन बाय वन हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके कौन कौन से इसके फार्मूला क्या हैं, इसका थियरी पहले देखेंगे, फिर इसका फार्मूला देखेंगे, फिर आइटम्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और आइटम विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इन सारे का वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इनको भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द वैल्यू एडेड मेथड, ओके। तो आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कि जिसके रिटर्न में हम इतना कुछ इनकम जनरेट करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो हम हमेशा हम लोग किसी भी इकॉनमी में जैसे इनकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम लोग हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई उससे इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है। कि कोई भी अगर टेम्पल जा रहा है तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि इनकम वहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो अपने एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहा है, ठीक है। उसका एक रिलीजियस होगा, एक मूड होगा कि चलो जाना है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आइटम हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सो वी विल स्टार्ट विद द वैल्यू एडेड मेथड। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, ठीक है। आउटपुट मेथड, ठीक है। इसके अभी कभी क्वेश्चन में आ गया है कि वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के ये 3 नेम्स हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड, प्रोडक्ट और आउटपुट, ठीक है। सो इसके मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम कि कौन कौन से मेथड हैं एस्टिमेट करने के नेशनल इनकम के। तो इसके 2 अप्रोचेस हैं। पहला है आपका फाइनल प्रोडक्ट अप्रोचेस, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, and the second one is value added approach, value added approach, ठीक है। इन दोनों अप्रोच से हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में क्या है और वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या, ठीक है। सो जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। So final added product is the broadly called GDP, ठीक है। जब भी हम लोग फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच की बात करते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, GDP। GDP is the gross domestic product. So it is defined as the monetary value of the all the final goods and services which is produced in an economy during an accounting year, ठीक है। monetary value of what, final goods and services। आपको याद होगा 2 टाइप के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल। कि अगर हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में ऑलरेडी रॉ मटेरियल अगर हम लोग ले रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी फाइनल में इंक्लूडेड है। अगर वही इंटरमीडिएट हम लोग ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग क्या होती है, इसको हमेशा हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी इज द सिंपली इट इज द डेफिनेशन दैट जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ
all the final goods and services which is produced in an economy during an accounting year. किसी भी accounting year में, accounting year पता होगा, इसको हम लोग fiscal year भी बोलते हैं. Fiscal, ठीक है, फिजिकल ईयर भी बोलते हैं कि बेसिकली किसी भी ईयर में, एक साल के ईयर में कितनी गुड्स, फाइनल गुड्स कितनी प्रोड्यूस हो रहा है, उनकी मॉनिटरी वैल्यू मतलब नॉमिनल टर्म्स में उसकी कितनी वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, सो इट इज़ एस्टिमेटेड दी बाय दी मल्टीप्लाई. ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग इसमें फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में पढ़ते हैं, दैट इज कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. सो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GVO एट MP. MP इज मार्केट प्राइस. ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स मतलब कोई भी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर है या एंटरप्रेन्योर है, वो कितनी कमोडिटी को सेल कर रहा है. तो जब भी हम लोग को सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, कि आउटपुट की वैल्यू क्या है. ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अब हाउ वी कैलकुलेट दी चेंज इन स्टॉक. सो चेंज इन स्टॉक इज दी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, डायरेक्टली आपको सेल्स की वैल्यू नहीं दी रहेगी. सेल्स आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन दे रखेगा, आपको दे देगा कि सेल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ दी एनी आउटपुट, प्राइस इनटू आउटपुट, कि जितने आउटपुट प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हैं और उसका कितना प्राइस है. तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच. फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में फिर से सुन लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज GDP? GDP इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced in an economy during an accounting year. So इसका मेथड क्या है, to which final product में GVO at MP, gross value of output at market price. MP is market price. So is equal to sales plus change in stock. Sales plus change in stock. Change in stock मतलब closing stock of finished goods and semi finished good minus opening stock. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में या आपको ऐसे नॉर्मली सेल्स नहीं पता होता है, तो सेल्स नहीं पता होता है तो क्या दिया रहता है, प्राइस दिया होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और कितने आउटपुट प्रोड्यूस हुए उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. फर्स्ट स्टेप जो है आपका वैल्यू एडेड ऑफ प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड का, वो है आपका GVO एट MP, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, फिर कह रहा है कि सिंस इट इज़ अ ग्रॉस सो इट इंक्लूड्स दी GDP बीइंग एट MP. ओके, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपको ऑलरेडी हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि ये G है. तो G है, ग्रॉस है, तो मतलब इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूडेड है. ठीक है, जब नेट रहता है तो उसमें से जो डेप्रिसिएशन होता है वो इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, सो yes, so there is always a problem of value of only final goods and services is included. इसमें क्या है, हमेशा हम लोग जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं को ही इंक्लूड करते हैं. ठीक है, और किसी वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज फॉर व्हाट, टू अवॉइडिंग दी डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट है आपका दैट इज वैल्यू एडेड अप्रोच. तो फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होगा, that is GVO at MP, gross value of output at market price, which is equal to sales plus change in stock. Okay,
सो प्राइस इनटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, सो फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच से हम लोग जीडीपी को ऐसे निकालें। नेक्स्ट जो आपका अप्रोच है वो है वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच, ठीक है। सो ये सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय दी एडिंग एनबीएफसी, ठीक है, बाय दी ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। इस मेथड से जैसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मेथड से अप्रोच से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, जीडीपी कैलकुलेट किया था। इस मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम, एनबीए एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनबीए एट एफसी, ओके। अब इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिंपली हमको चाहिए अब दैट इज जीबी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA at MP, which is equal to GVO MP। GVO MP हम लोगों ने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसके पहले फाइनल प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेट किया था। GVO MP किसके इक्वल था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे GVA MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सो GVO MP इज इक्वल टू GVO MP इज इक्वल टू GVO MP minus intermediate consumption, intermediate जिसको हम लोग IC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IC, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हमारा क्या हो गया, GVA एट MP निकल गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नेशनल इनकम दैट इज NBA एट FC निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ से GVA MP निकाल लिया, GVA एट MP। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, नेट है, और यहाँ पे ऑलरेडी ग्रॉस दिया है तो माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, आपके पास मार्केट प्राइस दिया है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, NIT बोलते हैं। NIT कैसे कैलकुलेट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तो NIT कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये कैसे क्या निकल गया, हम लोग इसमें दो अप्रोच पढ़े, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच। उसमें क्या पढ़ा, फाइनल प्रोडक्ट में पढ़ा हम लोग ने, उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, GDP MP कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम लोग ने GVO MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक देखा। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग ने वैल्यू एडेड अप्रोच देखा। वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या है, इसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो GVO MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GVO MP जो हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेट किया माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ दी रॉ मटेरियल हो गया ये सब। अब जैसे होता है परचेज ऑफ मशीनरी, ये जान लीजिए परचेज ऑफ मशीनरी कभी भी एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि मशीनरी क्या होती है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि मशीन को एक बार यूज़ किया फिर उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए परचेज ऑफ मशीनरी विल नेवर एवर टेकन एज दी इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में दे देता है, तो ये नहीं कि परचेज दे रखा है तो बस तुरंत ले लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NBA एट FC।
GVAMP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दे देगा या तो सब्सिडीज, दोनों दे देगा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या कभी कभी क्वेश्चन में GST दे देता है, साइज ड्यूटी दे देता है आपको, फिर इंटरटेनमेंट टैक्स दे देता है, सेल्स टैक्स दे देता है, तो वो सब क्या एज अ इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज स्टेप्स फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। स्टेप्स steps for estimating national income। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा कि जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट मेथड में जो बस प्राइमरी है सेकेंडरी है वही जो गुड्स प्रोड्यूस करें उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं तीनों के, मतलब कि पहला स्टेप क्या हो गया, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट और द इंडस्ट्रियल कैटेगरीज। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसको हम लोग प्लस करते हैं, तो ये क्या निकल जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज GVOMP। GVOMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कभी कभी क्या होता है, आपको प्राइस इनटू आउटपुट के थ्रू निकाल सकते हैं, या कभी क्वेश्चन में आपके पास रहेगा डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स में हम लोग क्या प्लस करेंगे, एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। और क्या हो जाएगा, सेल्फ कंजप्शन के लिए भी जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, बट यू शुड नो कि गुड प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह हम लोग डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज GVMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। GVAMP, तो GVAMP कैसे निकलेगा, निकलेगा आपका GVOMP हम लोगों ने यहाँ से निकाला माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। राइट, अब क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह पे क्या दिया रहेगा, माइनस करेंगे हम लोग, दैट इज परचेज और डोमेस्टिक परचेज, इसको बोल देते हैं डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। अब क्वेश्चन में कभी आपके पास IC दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया, उसके अलावा इंपोर्ट दिया हुआ है, तब वो कभी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी IC में इंपोर्ट इंक्लूडेड है। राइट, अब जब डोमेस्टिक परचेज दिया होगा तब हम लोग इसमें इंपोर्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने क्या निकाल लिया, यहाँ तक हम लोग ने GVMP को निकाल लिया। फिर अब क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा, दैट इज NVA at FC। NVA at FC, NVA at FC is equal to GVA at MP, वही सेम प्रोसेस, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NI। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या है कि कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू एडेड मेथड से, और
प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड से। तो सो दीज ऑल आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम।